Hi guys, hello, thank you for joining. We're live with Tiago. This is Pujal Chad connecting with you. And now we're going to be going live with Mr. Farooq Salman. Mr. Farooq Salman is the principal architect at Buchan Architects, a well-known architecture firm based in Karachi. Mr. Farooq Salman has joined us. So Farooq bhai, it would be great if you could send me a request. Right before we connect with Mr. Farooq Salman, I am going to take a moment and introduce Artiago. Artiago is an organization that focuses on bridging the gap between artists, architects, and designers from all over the world, well, all over the country mostly, where we've done a number of open houses, residential exhibitions, regular exhibitions, and talk sessions, all aimed at bringing the art community closer together. Today, we're connecting with Mr. Farooq Salman, principal architect at Buchan Architects, a well-known architecture firm in Karachi. We're going to be connecting with him in just a bit and finding out more about the life of a young architect in Karachi. Farooq bhai, would be great if you could send me a request. Okay, Obed, I'll call you tomorrow. Hi guys. Okay, I have Farooq bhai's request. Hi guys. Hello. Thank you for joining. We're connecting with Mr. Farooq Salman. We're waiting to connect, and we'll be live with them in just a bit. And we are live. Assalamu alaikum, Farooq bhai. कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम वालेकुम सलाम आई एम गुड जबरदस्त जबरदस्त. That's great. कैसा रहा आपके लिए लॉकडाउन कैसा रहा? lockdown was almost the same as the routine before because I was working from home since few months back, so अच्छा. it was more or less the same. But हाँ थोड़ा सा बाकी we mostly were working on the residential and institutional projects, so they were going on fine as well. So there wasn't अच्छा. much change in the work routine, and but meetings were online चल रही थी, वो सब online हो रहा था, जी and जी. people were working from home, but otherwise the work was fine, alhamdulillah. अच्छा अच्छा अच्छा. मतलब आपके ऑफिस में वो इशू तो नहीं हुआ 9 to 5 वाला वर्किंग आवर्स? नहीं, वर्किंग आवर्स वैसे भी फ्लेक्सिबल थे, हमारा स्टाफ लो था वैसे भी अच्छा. इन इन हाउस, एंड काफ़ी चीज़ें आउटसोर्सिंग होती थी, बट दैट टर्न्ड आउट वेल इन दैट सर्कमस्टांसेस बिकॉज हम्म. अब हमने ज़्यादा, हमारा जो मॉड्यूल था वो जी. थोड़ा सा इस लिहाज से ज़्यादा कॉर्पोरेट डिफरेंट. नहीं था, तो दैट वर्कड आउट वेल फॉर अस अच्छा. because जबरदस्त. तो most of मतलब the सब. people things were जी. outsourced, and most of the people were working on flexible hours at हम्म. home already. So सही. हाँ, तो इसलिए तो हमारा आप लोगों ज़्यादा ने इफेक्ट नहीं रहा. अच्छी या तरीके से प्ले आउट कर गई चीजें आप लोगों या की. या जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा फर्क भाई, हम बात शुरू करते हैं आपके आईवीएस के एक्सपीरियंस के, यूनिवर्सिटी के एक्सपीरियंस से. माशाल्लाह आपने भी 5 साल गुजारे आईवीएस में. तो हम्म, कैसा रहा 5 साल का टाइम? 5 साल का टाइम, अब तो 5 साल और गुजर गए उसके बाद, लेकिन 5 साल के टाइम में वो अच्छा रहा. इट वाज द बेसिकली बेस वही थी, वहीं से हमने सब सीखा. वहीं से हमें दो यू नो आई एन इंस्टीट्यूट, वट एवर इंस्टीट्यूट इट इज, तो वो आपको खाली आपका कोर्स नहीं बढ़ाता, इट ग्रूम्स योर पर्सनैलिटी एंड इट ग्रूम्स यू ओवरऑल कि आप किस तरीके से you go about the life that affect the your institute affects the your life overall, not just your profession. So it helped me a lot. हमने सारा कुछ वहीं से, हमारे जो सीनियर्स थे हमारे मेंटोर्स रहे हैं, so I was like fortunate to get very good mentors. हमारे काफ़ी सारे सीनियर कराची के आर्किटेक्ट्स आर्टिस्ट जो मेरे टीचर्स रहे, they have a major role to play in where आई एम टुडे एंड वट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ. तो वहीं से कहीं से इंस्पिरेशन होती हैं, वही कुछ रोल मॉडल्स होते हैं, एंड यू लर्न अ लॉट विद द एंड ऑल्सो माई कॉलीग्स एंड ये सब. वट आईवीएस डज इज आईवीएस प्रोवाइड्स यू अ वेरी गुड, कहना चाहिए कि एक आर्ट एंड डिज़ाइन एनवायरनमेंट एज वेल, एनवायरनमेंट. बिकॉज जी. आई टीच एट एनईडी. तो एनईडी में मुझे लगता है कि सब अच्छा है, स्टूडेंट्स हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एंड एवरीथिंग, बट जो एक स्टूडियो कल्चर हमें आईवीएस में मिला था वो लैक कर रहा है वहाँ पर, मिसिंग बिकॉज है. इट्स मोर सही. ऑफ एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड उनकी थोड़ी सी उस तरह से माइंड सेट है. सो दैट व्हाट आई फील वी वर लकी. वैसे भी हम आईआईपी के जब जाते थे उस पे इवेंट्स वगैरह पे, व्हेन वी यूज्ड टू कोलैबोरेट विद स्टूडेंट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज, तो हमें लगता था कि हम somehow we
we were privileged enough to get the very good environment to learn. You had a different studio environment. अच्छा सर, ये स्टूडियो environment का फर्क क्या पड़ता है, या मतलब to what extent do you think it affects an artist's personality? यार देखिए, जब अब डिजाइन एंड जो प्रोफेशन है हमारा, इट्स मोर, आई बिलीव दैट इट्स मोर ऑफ अ कोलैबोरेटिव वर्क, एंड इट्स मोर अबाउट यू शेयर योर आइडियाज, यू शेयर योर जो कि अब हम जब स्टूडियो एनवायरनमेंट रहते थे तो वी यूज टू स्पेंड द होल डे टुगेदर, एंड उसमें आप आइडियाज भी एक्सचेंज करते हैं, उसमें अपने खाली डिजाइन से रिलेटेड नहीं, आप वैसे भी हर चीज शेयर कर रहे होते हैं. तो आई थिंक कोलैबोरेटिव एफर्ट जो मिली बहुत ज्यादा था. बाकी हमारे को फिक्स्ड आवर्स नहीं होते थे लाइक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज लाइक दे ऑपरेट. तो वो चीज हमें स्टूडियो एनवायरनमेंट में, अभी हमारा ऑफिस भी उसी मॉडल पे है. लाइक यू सीइंग, आई एम सिटिंग इन माय होम स्टूडियो राइट नाउ. हम अभी भी वही मॉडल मेकिंग, स्केचिंग, इसी तरह से हम उसी तरह से, और फ्लेक्सिबल आवर्स हैं फॉर वर्किंग. एंड सिर्फ जो हमारा थोड़ा सा फॉर्मल टाइम होता है ऑफिस का, वो सिर्फ क्लाइंट मीटिंग्स के टाइम पे होता है. अदरवाइज वेरी वेरी होमली एनवायरनमेंट एंड स्टूडियो एनवायरनमेंट. अच्छा, अगर हम जैसे बात कर रहे थे अभी आईवीएस के बारे में, जैसे आईवीएस के बारे में जनरली एक परसेप्शन है कि गेटिंग टू आईवीएस इज द ओनली चैलेंज, बाकी के आगे के 3-4 साल गुजर जाते हैं. तो would you agree with that statement? No, this is a wrong perception. Getting in IVS is not very difficult. Going through and passing it peacefully is a bit of a challenge. Because once you get in, तो आपको एक्चुअली जो हम बहुत सारे लोग अप्लाई करते हुए इस माइंडसेट के साथ होते हैं, जो मैं भी था, कि हमें ना बहुत कुछ पता होना चाहिए अबाउट द आर्ट एंड डिजाइन एंड ये सब, so we can get into the institute. But ऐसा है नहीं. Actually ऐसा है कि हम सीखने आ रहे हैं, so they don't expect us to know everything. एंट्री टेस्ट में, आप इंटरव्यू में, पीपल थिंक कि हमें बहुत कुछ पहले से नॉलेज उसका होना चाहिए अबाउट द प्रोफेशन वी आर गोइंग इनटू. बिकॉज आई केम फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, so I didn't have any idea about the art and design and ये aspects. So but fortunately हम तो अच्छे तरीके से हमने गुजारा. बट ये कि आपको you have to be passionate about it, and you have to कि आपको बहुत सारे working hours required है, जो कि probably I won't say कि it's difficult than other professions. I will say कि हर profession की अपने challenges हैं. But the only thing जो makes it a bit different is you need a lot of working hours. You need to spend a lot of time. So वो चीज़ में है जो you also went through the same, कि like time मांगती है चीज़. बाकी एफर्ट तो कि whatever you want to do it requires effort. अच्छा फरूक भाई, आपके what were your plans around graduation, और चीजें किस तरीके से play out हुई आपके लिए? Oh, that ये तो बिल्कुल कुछ भी प्लान के मुताबिक नहीं चला. अच्छा. But it worked out very well right now. मगर plans were different. अच्छा, मेरे plans थे when I was in IVS. तो पहले तो plan ये था to pass do my graduation in the 5 years. Because हम हर एक एग्जाम्पल देख रहे थे कि किसी ने 6 साल में किया, किसी ने 8 साल में किया. ये तो पहला एम तो ये था कि 5 साल में गुजार लें. And then when I was in 4th year, 5th year, then my plan was not to stay in Karachi and work in the profession for very long. I had plans to go for masters, and जब मैंने आप काम स्टार्ट भी किया तो मैंने इसी माइंडसेट के साथ स्टार्ट किया था कि आई अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स एंड मास्टर्स. एंड क्योंकि अभी एक एजुकेशन खत्म भी हुई है, ग्रेजुएशन भी हुई है, तो आई नीड अ बिट ऑफ ब्रेक फ्रॉम दैट. आई विल वर्क, आई विल गेट सम एक्सपीरियंस, देन आई विल गो फॉर माय मास्टर्स. बट थिंग्स चेंज रैपिडली. When I was working with the Quest Design Studio, उसी टाइम पे I started getting a lot of freelance work. University I was doing the freelance work, but उसके बाद I started getting a lot of freelance work. Then I started getting bigger projects. Then I did some presentations for bigger institutes, bigger corporate industries, bigger companies. So luckily I got a lot of big commissions. तो उसमें that changed my direction, because फिर अब देखो, अब उसमें हर कोई प्रैक्टिस करे जरूरी नहीं है. लाइक प्रोफेशन में there are multiple ways to go about it. मगर फिर then I was firm about it कि यार मुझे अब प्रैक्टिस ही करनी है, और and I want to have a hardcore practice. मगर उसमें हम एक स्टूडियो जो है, जो हमें चीज़ इंस्पायर करती थी यूनिवर्सिटी टाइम से,
will जी stay maintain that character. I don't want जबरदस्त to go with a very very corporate कमर्शियल industry, अप्रोच because जो हमने जॉब्स भी की हैं, हमने कॉर्पोरेट फर्म्स का काम भी किए हैं, बहुत बड़े स्केल पे भी लोग काम करते हैं कराची में, a lot of firms are working with 50 to 60 की टीम, 100 लोगों की टीम। मगर मेरा उस तरह का था नहीं, हमारा था कि विल आई बिलीव इन कोलैबोरेशन, बट बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं। राइट सो इसलिए फिर वो डायरेक्शन चेंज हो गई, गॉट अ लॉट ऑफ वर्क, आई डिडंट वांट टू मिस दोज अपॉर्चुनिटीज। फॉर्चुनेटली वो काम अच्छे तरीके से डिलीवर हुए, रेफरल बेस्ड, आई गॉट मोर कमीशंस देन प्रोजेक्ट्स अभी इट गोज ऑन। अभी 2 साल से हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इट्स गोइंग रियली वेल माशाल्लाह। तो पर भाई ये कितना करना चाहिए, जैसे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे ग्रेजुएट और ग्रेजुएट होते साथ ही 6 महीने के अंदर वो अपनी फर्म शुरू कर देते हैं, तो आपका क्या टेक है इस चीज के ऊपर? यार इसमें देखो कोई हर्ज नहीं है, अच्छा अगर कोई हर्ज नहीं है इसमें, आई वोंट डिस्करेज इट, बट यू नीड टू नो, आपको खुद से पता होना चाहिए। देखो अगर आप इस वजह से कर रहे हो कि आपको जॉब पसंद नहीं आ रही, या जी आपको कि अगर आप अपने कंपनी से तंग हो, अपने बॉस से तंग हो, और उस वजह से आप कर रहे हो, दैट इज द रॉन्ग अप्रोच। बट इफ जी यू फील दैट कि कि यू आर इक्विप्ड इनफ, हम्म, you have a certain के understanding of work, how things हम्म, work, ठीक है। बिकॉज जॉब करने का क्या फायदा होता है कि आप ना किसी और की प्रोजेक्ट पे सारी गलतियां कर सकते हैं, ठीक है। किसी एग्जैक्टली और के जी एक रिस्क फैक्टर नहीं होता, तो आप गलतियां करें, आप सीखें, और आपके पास हमेशा एक शेल्टर होता है, बिकॉज समवन जी सीनियर देन यू इज हम्म, ओवरलुकिंग द प्रोजेक्ट, एंड बिल्कुल देन आप बच जाते हो, आप कुछ मेजर गलती नहीं करते, आप सीख लेते हो उस चीज से। बट व्हेन यूर बिल्कुल ऑन ना, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप कुछ ऐसी चीज करते हो या आप होते हो, तो देन आपकी स्ट्रगल ज्यादा रहती है। अगर बिल्कुल आपने वो अपना टाइम पीरियड पूरा किया है, लर्निंग टाइम, एंड उसका कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, लाइक लोग कहते हैं 4 साल कर लें, 5 साल कर लें, आई वर्क फॉर 3 years, हम्म, एंड उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, मगर ये कि जी यू शुड नो कि नाउ आई एम इक्विप्ड इनफ एंड आई कैन हैंडल सर्टेन थिंग्स। सही ऑब्वियसली यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन योर वे, बिकॉज हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको प्रैक्टिस में करने के लिए डिज़ाइन नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, खाली आपको डिज़ाइन अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं होती, आपको फिर बिजनेस चलाना भी आना चाहिए, आपको बिल्कुल फिर अकाउंटिंग एस्पेक्ट भी पता होना चाहिए, आपको फिर ह्यूमन रिलेशन ये चीज़ भी बनानी चाहिए, आपको क्लाइंट रिलेशन के भी बिल्कुल पता होना चाहिए। तो देयर मल्टीपल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन, तो वो जी तो आप चलो यू लर्न अलोंग द वे, वी स्टिल लर्न, हम आगे भी सीखते रहेंगे। जी और तो बस ये कि यू शुड फील कि यू आर इक्विप्ड इनफ। अब दैट टाइम पीरियड कुड बी 6 months, दैट टाइम पीरियड कुड बी 6 years, बट जबरदस्त उससे भागो नहीं। जी दैट वुड बी माई टेक ऑन इट, कि उससे भागो नहीं, जस्ट फॉर द आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं डिसाइड करो कि कि आई वांट टू स्किप माय करेक्ट 9 to 5 एंड आई वांट टू गो फॉर माय ओन प्रैक्टिस। तो ये जबरदस्त। अच्छा फारूक भाई, हम वापस एक सवाल हमारे पास आ गया है आईवीएस से रिलेटेड। What are the three major things that students should know before they apply to an art school? दे शुड नो व्हाई दे आर डूइंग इट। हम्म, पहली बात तो ये उनको खुद पता होना चाहिए कि वो क्यों कर रहे हैं। इफ दे आर क्यों अप्लाइंग कर टू रहे आर्ट स्कूल, हैं? तो उनकी कोई एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगी, नॉट जस्ट बिकॉज के बहुत आर्ट सारे है, लोग मुझे शुगर ऐसे भी मिले थे कि यार ठीक है, आईवीएस उनको बड़ा अच्छा अट्रैक्ट कर रहा था, कि फन एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इस तरह से उनको अट्रैक्ट कर रहा था आईवीएस, तो दैट्स व्हाई दे वर अप्लाइंग टू इट। मगर यू शुड नो कि व्हाट प्रोफेशन यू आर गेटिंग इन एंड व्हाई यू आर गेटिंग इन, बस ये आपको व्हाई का आंसर होना चाहिए आपके पास कि आप क्यों कर बिल्कुल। रहे हैं। देन आपको कुछ बेसिक आर्ट एंड डिजाइन का नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, वो आप आईवीएस में सीख सकते सीखेंगे, वो आप सीखेंगे। 5 साल आपके लिए आप वहां पर कर रहे हैं, तो आप सीखेंगे ना, और आपके पास मेंटर्स होंगे जो आपको सिखाएंगे, एंड आपके कोलीग्स होंगे जिनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे, जो आपके बैचमेट्स होंगे उनसे आप सीखेंगे। तो आपको सीखे होने की कोई जरूरत नहीं है, मगर आपको इतनी पता होना चाहिए आप क्यों कर रहे हैं। हैं। जबरदस्त। अच्छा फारूक भाई, हमारे पास साथ साथ सवाल भी आ रहे हैं। एक सवाल आया हुआ है हमारे पास अली 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 साहब, अली भाई के पास से। वो पूछना चाह रहे हैं, फारूक, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स फ्रॉम योर एक्स जॉब? सब दोस्त हैं अभी तक मेरे, चले भाई हैं मेरे। डिप्लोमेटिक अप्रोच। अच्छा जी, एक और सवाल है हमारे पास। वो ये है, व्हाई डू फ्रेश ग्रेजुएट्स गेट पेड इन डाइम्स? इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। हाँ यार, उसकी वजह ये है कि देखो, अगर मैंने भी हायर किए थे, हमने भी थे लोग, बट द थिंग जी इज के
अब जब आप फ्रेश ग्रेजुएट को हायर करते हो ना, तो बेसिकली अगर एक ऑफर, क्योंकि मैं भी ये सोचता था जब हम अप्लाई कर रहे थे, लाइक हमें ऑफर्स अच्छी अच्छी जगहों से आ रही थी, अच्छी अच्छी फर्म से ऑफर आ रही थी, मगर दे weren't पेइंग वेरी हैंडसमली, तो वो एक जी कंस्ट्रेंट था। द थिंग इज कि यार, एक आपको डिजाइन प्रैक्टिस तो है, मगर वो साथ में एक बिजनेस भी है। अ जी फर्म नोज कि एक फ्रेश ग्रेजुएट उसको पैसे बना के नहीं दे सकता ज्यादा, क्योंकि वो उसको साल लगेगा थोड़ा सा उस स्टेज पे आने के लिए कि वो फर्म के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो ठीक है। साल बाद लोग छोड़ने की सोचना शुरू कर देते हैं। तो फर्म जो है वो अपने बिजनेस के हिसाब से कैलकुलेट कर रही होती है कि लाइक इस पे हम इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें आउटकम और इतना मिलेगा कि नहीं रिटर्न। मिलेगा। तो यहाँ पर आउटकम देखो इस तरह से नहीं मिलता, तो वहां पर एक ये चीज गलत भी है, क्योंकि एक अब ये बहुत सारी बड़ी फर्म्स का ना एक तरीका बन गया कि दे नो कि बंदा 2 साल में छोड़ देगा। दे डोंट वांट टू सस्टेन देयर एम्प्लॉइज, जी दे डोंट मेक एन एफर्ट टू सस्टेन देयर एम्प्लॉइज। बिल्कुल। मगर अब उनको उन्हें भी ये अप्रोच बना लिया कि 2 साल तक काम करेगा, हम अपना काम निकलवाएंगे, और देन ही कैन मूव ऑन एंड आई कैन वी कैन गेट मोर फ्रेश ग्रेजुएट, मोर बिकॉज ऑफ कोर्स। ग्रेजुएट तो हर साल हो रहे हैं लोग। तो एग्जैक्टली। फिर उनको हम बेसिक सॉफ्टवेयर आते हैं, बेसिक चीजें आती हैं, बाकी हम अपना काम निकलवा लेंगे। तो ये थोड़ी सी गलत अप्रोच है, बिकॉज बहुत सारी अगर आप इंटरनेशनल फर्म्स को स्टडी करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। जी उसमें आपका पूरा ग्रोथ प्लान है। इफ यू फॉर एग्जांपल आप जहादीज को ले लें, या वो जहादीज चली गई लेकिन उसकी फार्म अभी तक चल रही है, बिकॉज उसका पार्टनर था हु हैज टेकन ओवर इट, एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु जॉइंड जहादीज आर नाउ पार्टनर्स इन द फार्म। तो उन वो फिर एक स्ट्रैटेजी लेके जाते हैं कि मेरा विजन इस आर्किटेक्ट के साथ मैच करता है, आई विल वर्क विद हर हिम और हर, एंड आई विल कंटिन्यू वर्किंग, बिकॉज वो अपनी ग्रोथ वहां पर देख रहे होते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि फ्रेश ग्रेजुएट को ज्यादा ग्रोथ इतनी दिख नहीं रही होती फर्म में, टू बी ऑनेस्ट, एंड उनको भी ज्यादा लंबा टाइम स्पेंड अदर अपॉर्चुनिटी विल मूव। तो वो बोथ वेज है, वो भी उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, वो भी आगे उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, विच इज नॉट अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस, मगर ऐसा ऑफ है। कोर्स। अब जो है, अच्छा फारूक भाई, मेरे दो सवाल हैं आपसे। एक तो ये कि जिस तरीके से आपने कहा कि फर्म्स जो हैं वो सस्टेन जी जी। नहीं करती हैं, या दे डोंट एग्जैक्टली इंटेंड ऑन सस्टेनिंग द सीनियर आर्किटेक्ट्स, इस तरीके के। तो हम्म क्या हम्म फर्म के लिए माशाल्लाह आप अपनी फर्म भी चला रहे हैं, क्या फर्म के लिए बेनिफिशियल ये है कि वो हर 2 साल या हर 3 साल के बाद नए लोगों को रिक्रूट करे, या पुराने एक ही सीनियर आर्किटेक्ट जिसकी एक तरीके से एक रिजिड अप्रोच भी हो गई होगी, दो देयर हम्म आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट, कि उसकी हम्म रिजिड अप्रोच हो गई, या फिर वो हम्म उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा आ गया। तो हम्म क्या फर्म के लिए बेनिफिशियल क्या चीज़ ज़्यादा है? और दूसरा सवाल चलेंगे इसके बाद मैं पूछता हूँ दूसरा सवाल आपसे। फर्म के लिए देखो बेनिफिशियल अब बहुत फेज है। यहाँ पर हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये कि कुछ फर्म्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो इस तरह इस अप्रोच के साथ काम करते हैं कि हमें बेसिकली एक्सपीरियंस टीम के 3-4 मेंबर्स चाहिए हु विल लीड द प्रोजेक्ट्स, एंड उसके नीचे हमें एक टीम चाहिए हु विल प्रोड्यूस द वर्क। तो दे प्रेफर फ्रेश ग्रेजुएट बिकॉज फ्रेश ग्रेजुएट्स कैन प्रोड्यूस द वर्क फॉर देम, इन हाउस वर्क, सॉफ्टवेयर वाइज वर्क। मगर अगर आप उस तरह से देखें, कुछ अंडरस्टूड। अगर सस्टेन करें तो 2 साल बाद द एम्प्लॉय इज मोर बेनिफिशियल टू द फर्म। तो उस तरह से ओन करना चाहिए फर्म को। बट दिस इज सब्जेक्टिव अप्रोच, एवरी कि हर आर्किटेक्ट हर फर्म ओनर जो है वो इसको अपने तौर पे देखेगा। अपने सब्जेक्टिव तौर काइंड ऑफ पे। थिंग। सही। अच्छा, दूसरा, लॉट ऑफ जूनियर आर्किटेक्ट्स या जूनियर आर्किटेक्ट्स कंप्लेन के, जैसे अभी हमारे पास कमेंट्स में भी ये सवाल आया हुआ था कि दे डोंट गेट पेड अ लॉट। नाउ हम्म आई एम गोना गो अगेंस्ट अ फ्यू सेशन रूल्स एंड आई एम गोना से इट आउट लाउड। जूनियर आर्किटेक्ट्स at most, if he's lucky, he gets 25,000 rupees a month, and there's हम्म like no to very little growth. तो हम्म उस, and given the economy and all of that, क्या एक यंग आर्किटेक्ट की क्या अप्रोच होनी चाहिए इन नंबर्स को और इस सोसाइटी को लेते हुए, ये साथ रखते हुए? यार ये बात बिल्कुल सही है, मगर फिर इसी वजह से अप्रोच लोगों की ये बनती है कि हम अपनी प्रैक्टिस की तरफ जाएं। जी तो मेरी अप्रोच जो अपनी प्रैक्टिस की तरफ बनी थी, वो उसकी वन ऑफ द रीजन वाज दैट एज वेल, बिकॉज जी। ठीक है, मुझे आपको पता होता है कि मतलब एक सर्टेन फर्म में आपकी ग्रोथ की एक लिमिट है। ठीक है, बिल्कुल। आप वो वहां तक पहुंच जाते हैं तो यू गेट एन आइडिया कि यार आई कांट गो बियॉन्ड दैट, आई कांट लर्न बियॉन्ड दैट, एंड मेरी सीनियोरिटी भी इससे ज्यादा बढ़ने वाली है नहीं। तो वो बिल्कुल। इसलिए अपनी प्रैक्टिस, देयर वर मल्टीपल रीजंस फॉर गोइंग टुवर्ड्स माय प्रैक्टिस, बट वन ऑफ द रीजन वाज दैट। बिकॉज अगर पहले हम सुनते थे जिस तरह से यूनिवर्सिटी के टाइम में कि यार दिस प्रोफेशन डजंट मेक यू मनी, तो आई वुड डिसएग्री विद इट। दिस प्रोफेशन डज मेक यू मनी,
आप किसी भी अच्छे बैंकर जितने पैसे बना सकते हैं, आप किसी भी अच्छे डॉक्टर जितने पैसे बना सकते हैं. यू जस्ट नीड टू हैव कि उसका तरीका आपको फिगर आउट करना है, व्हाट वर्क्स फॉर यू. हाँ, एंड सही, वर्किंग फॉर सम अदर आर्किटेक्चर फर्म इज नॉट अ वे, सही. बिकॉज उसमें ना वो फर्म चाहेगी कि हम्म, वो एक आर्किटेक्ट पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करे, जी, बिकॉज उनको भी रेवेन्यू प्लस इन्वेस्टमेंट का ऑफ रेशो देखना कोर्स, है. बिल्कुल. एंड जो एम्प्लॉय है वो भी कभी एक लुक्रेटिव पैकेज नहीं ले पाएगा, अदर देन के यार बहुत बड़ी फर्म है और उसके टॉप टियर के 4-5 उनके जो लोग हैं उनके अलावा. जी, तो सही. जूनियर आर्किटेक्ट्स को तो वो है कि अब आप एम ये रखें कि यू एम शुड बी कि आप वहां से मैक्सिमम टेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट, क्या आप उसको वैल्यू के वाइज मेजर करें. इफ यू स्पेंडिंग अ मंथ देयर तो उसको एक वैल्यू से मेजर करें कि यार 25K 30K वट एवर इज, एंड द अमाउंट ऑफ के एक्सपीरियंस यू गेट. वंस यू गेट दैट एक्सपीरियंस तो आपको अब ये प्रैक्टिस का हमारा नॉर्म ऐसा बन गया है कि आप अपनी प्रैक्टिस में तो यू कैन अर्न. आप बस टाइम पीरियड अपना काउंट करें कि आप 2 साल में वो स्टेप ले सकते हैं, 4 में ले सकते हैं, 6 में ले सकते हैं. अच्छा फरूक भाई, हमारे पास और भी सवाल आए हुए हैं. सॉरी, मैं आई मिस्ड ऑन दिस क्वेश्चंस. इट इज यार डू मैं यू थिंक इट सॉरी इज मैं नहीं देख रहा ये सवाल, आप देख रहे हो सारे? जी जी जी, मैं वही आपको सही. कमेंट सेक्शन के ही सवाल है जो मैं आपसे पूछूं. डू यू थिंक इट्स राइट टू हैव अ स्ट्रांग डिजाइन फिलॉसफी व्हेन यू जस्ट 4 or 5 years of practice? If you could, Ramsha, Naveed, if you could please elaborate on your question. We're a little lost, तो अगर आप थोड़ा सा elaborate करते हैं, explain करते हैं, तो हम definitely फरूक भाई सवाल के भी जवाब देंगे. In the meanwhile, we have another question. Would you like to consider? Would you like to continue your business into another city? यार हाँ, आई वुड लव टू. अगर देखो हमारा साथ ऐसा होता है कि जहाँ पर आप होते हैं, जहाँ पर आपकी प्रेजेंस होती है, उधर आपके काम बढ़ते हैं. तो इफ आई बिल्कुल. वांट टू एक्सपैंड इन सम अदर सिटी, आई नीड टू मेक माई प्रेजेंस देयर एज वेल, इन सम वे और बिल्कुल. द अदर. इन इन ब्रांडिंग में वो करूँ, जिस तरह से भी करूँ, तो वो हाँ बगैर है हमारा है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑल ओवर सिंध राइट नाउ. सखर, खैरपुर, हैदराबाद, नवाबशाह, कराची, इन जगहों में माशाल्लाह. हमारे प्रोजेक्ट्स हैं. एंड आई हैव डन प्रोजेक्ट्स इन मुल्तान एंड बहावलपुर एज वेल. बट कुछ जबरदस्त. उसमें से मतलब एक एक दो दो प्रोजेक्ट्स हैं, मेनली फोकस कराची है अभी. बट हाँ, आई वुड लव टू जी. हैव कि कोई प्रोजेक्ट हम लाहौर में करें, कोई प्रोजेक्ट हम इस्लामाबाद में करें. इवन हम फिर उसके बाद हम आगे सोचें कि हम इंटरनेशनल कैसे जा सकते हैं. या एम इज दैट, इंशाल्लाह, व्हाई बट नॉट. उसके लिए सिर्फ जो लिमिटेशन है वो यही है कि आई नीड टू मेक माई प्रेजेंस इन सर्टेन एरियाज. ऑफ कोर्स एट अ टाइम आप एक ही जगह पे हो सकते हैं. अली भाई हमें बता रहे हैं कि 25 नो हो जाए, दैट्स सो 26 40 की स्टार्टिंग. अच्छा, I meant it's okay to have a strong design philosophy when when you just have 4 or 5 years of practice. फरूक भाई, अगर आप ये सवाल देखें. अच्छा, a minute, just give me a minute. जी जी. चार्जर लेकर आ सकते हैं वहाँ से? चार्जर. हाँ. Yeah, you were asking about the design philosophy. If someone is working for 4-5 years, so do they need to have a strong design philosophy? That's what you asked, right? Probably yes. हाँ. I'm sorry, I हाँ didn't नहीं, get the question. मतलब जो अभी आपने रिपीट किया किसी कमेंट में से, आई थिंक यही था कि जी जी जी. अगर कोई 4-5 years से प्रैक्टिस कर रहा है तो डज इट नेसेसरी टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजाइन फिलोसफी? आई डोंट थिंक सो. योर डिजाइन फिलोसफी इवॉल्व्स बिकॉज एज यू grows, your life evolves and your design philosophy also evolves. क्योंकि अभी मैं अगर 4 साल 5 साल वाले प्रोजेक्ट्स को अभी देखूंगा तो आई वुड design them differently, I would execute them differently, I would use different kind of technique to construct it. I would probably use different materials because कि आपका knowledge बढ़ता रहता है तो आपके horizons बढ़ते रहते हैं. You more you consume and फिर उसके बाद आप उसी को express करते हैं. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर 5 साल में आपकी कोई डिज़ाइन फिलोसफी होगी तो वो आपकी अगले 30-40 साल चलेगी. इट विल कीप ऑन इवॉल्विंग. बिल्कुल. तो बी फ्लेक्सिबल विद इट.
अच्छा फर्क भाई डिजाइन फिलोसफी में और एक सिग्नेचर डिजाइन जो होता है इन दोनों में फर्क है? I will answer you this in a minute. I need to put my phone on charge. जी 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 Sorry. प्लीज. So- I'm sorry, Rashna, I didn't exactly get your question, but I hope Farooq bhai answered it. जी फरूक भाई, वी हैव अनदर एनोनिमस क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये है कि जो सो फरूक, विल यू ब्रेक द प्रैक्टिस एंड पे योर गाइस एज मच एज बैंकर्स एंड लॉयर्स एक्सेट्रा? जी फरूक भाई, कैन यू हियर मी? But tell me one thing. Why is जी जी. the live feed not coming on my laptop का Instagram login? ओ नहीं नहीं, वो फरूक भाई लैपटॉप पे नहीं आएगा. अच्छा, because I was, वो उसमें था कि मैं वो that didn't work out. तो फोन जी जी. की बैटरी started. दैट्स कम्प्लीटली ऑलराइट. वो नहीं, वो इंस्टाग्राम लाइव जो है ना वो सपोर्ट नहीं करता लैपटॉप से कनेक्ट करना. अच्छा चलो, आई एम मूविंग द फोन, तो अगर कुछ चार्जर वार्जर डिस्कनेक्ट हो जाए तो पार्डन मी, आई विल रिकनेक्ट. जी जी जी, दैट्स कम्प्लीटली ऑलराइट. ठीक है, हाँ. अच्छा तो फरूक भाई, हम हमारे पास एक एनानिमस सवाल भी आया हुआ है, तो वो पूछना चाह रहे हैं कि जैसा दिस आई बिलीव दिस इज इन रिगार्ड्स टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द सैलरीज एंड एवरीथिंग. तो वो सवाल ये है, सो फरूक, विल यू ब्रेक द प्रैक्टिस एंड पे योर गाइस द सेम एज बैंकर्स एंड लॉयर्स एक्सेट्रा? will I do what? Will I pay them? But पहला लाइन क्या थी? वो यही है कि आप जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना हाँ. कि फर्म के लिए क्या कॉस्ट, हम्म. फर्म किस तरीके से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम्म. करती है अपना. तो हम्म. उस सिचुएशन में 2 साल के बाद क्या आप अपने आर्किटेक्ट्स को प्रेफर करेंगे? would you want to pay them more and have them stick around, या would you prefer कि वो लाइफ में मूव ऑन कर जाएं और फ्रेश कर? नहीं, I would want them to stick around, but the अच्छा. thing is कि उसमें जो मेरी लिमिटेशन आएगी वो ये आएगी कि I need to कि figure out कि how much the firm is making, and उसकी अंदर में उस जो certain architect है उसका रोल क्या है, like how सही. उसका रोल कितना important एग्जैक्टली. है. If it's important enough तो उसकी जो worth बनती है, I think should be paid that worth. अकॉर्डिंग. बिल्कुल. हम्म. अच्छा जी, how would you define socially responsible architecture? सोशली रिस्पॉन्सिबल आर्किटेक्चर, हम इसमें देखो, अगर हम ह्यूमन सेंट्रिक आर्किटेक्चर की बात करते हैं, हमने यूनिवर्सिटी में टाइम पे थ्योरीज में बहुत दफ़ा पढ़ा, मगर हमने कि अब आप हमारे सिटीज़ में देखें या कुछ देख लें तो बहुत कम एग्जांपल मिलेंगे विच आर डिजाइंड अराउंड ह्यूमंस. लाइक हमारे लैंड्सकेप, अपने वॉकवेज देख लें, स्ट्रीट्स देख लें आप. अब हम ज़्यादातर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स करते हैं. अब रेजिडेंशियल में अगर मैं फॉर एग्जांपल बात कर लूँ, या हम इंस्टीट्यूशनल कर रहे हैं, स्कूल्स कर रहे हैं, तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच क्या होगी? अब ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच में आप को बेसिकली देखने के ह्यूमन 5 सेंसेस हैं. हाउ कैन यू स्टिमुलेट दैट थ्रू डिज़ाइन? तो मेरे लिए ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ही है. एंड हाउ कैन कि उसमें आपका ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच में आपका क्लाइमेट भी आ जाता है, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच में आपका इकोनॉमी भी आ जाती है, द बजट ऑफ द वो, लेकिन उसमें और दूसरा ये कि द कल्चर आ जाता है. अब किस कल्चर में यूर बिल्डिंग अ हाउस. एंड हम रेजिडेंशियल में हमेशा फैमिली से मिलते हैं, एवरी फैमिली हैज़ अ डाइवर्स कल्चर, बिकॉज कोई किसी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसके घर में डिफरेंट है, उसके घर में प्राइवेसी रूल डिफरेंट हैं, कोई किसी बिलोंग, उसके घर में किसी का आना जाना डिफरेंट है, उनके घर में उनके सोशलाइजिंग डिफरेंट है. एवरी फैमिली कम्स विद देयर ओन सर्टेन कल्चर. So to cater to that, to address to that, is
द ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल। वैसे तो हम सोशली रिस्पॉन्सिबल आर्किटेक्चर की जब बात करते हैं तो हम बहुत चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं, मगर इसमें ये कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों में यू कैन इनकॉर्पोरेट द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। अंडरस्टूड। अच्छा फरूक भाई, हमारे यहाँ डिजाइन के अंदर सस्टेनेबिलिटी किस एक्सटेंट तक कंसिडर की जाती है हमारे रेजिडेंशियल यहाँ प्रोजेक्ट्स में? देखिए इंस्टीट्यूशनल में we did recently did a school for Air Force का उनके इंस्टीट्यूट्स के लिए। तो that was a huge project and that is all running on passive cooling techniques। उसमें कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है। तो सस्टेनेबिलिटी में अगर एक तो एस्पेक्ट ये है क्लाइमेट का, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं एड्रेसिंग टू दैट। तो उसमें देखो बहुत ज्यादा कोई मेजर चीजें नहीं करनी होती हमें। अब इफ यू कंसिडर द ओरिएंटेशन ऑफ द बिल्डिंग फॉर एग्जांपल, अगर आप सिर्फ सन स्टडी करके ओरिएंटेशन पे ही काम कर लें, यू नो अचीव अ लॉट आउट ऑफ इट। एंड हमें कराची में क्रॉस वेंटिलेशन वर्क्स वेरी वेल। तो अगर आप उसको उस तरह से केटर करें अपनी ओरिएंटेशन में, तो आपको उसको सस्टेनेबल, लेकिन सस्टेनेबिलिटी में खाली ये नहीं कि आप सिर्फ क्लाइमेटिक फैक्टर्स लें। सस्टेनेबल शुड आल्सो बी ड्यूरेबल। सस्टेनेबिलिटी में आपको शुड आल्सो बी एंजॉयबल। मतलब सस्टेनेबिलिटी के जब आप बात करें तो ऐसा ना लगे कि आप लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, आपको ऐसा हो कि आप लाइफस्टाइल एनहांस कर रहे हैं। So that is my approach। वो जिस तरह से recently there was a concept of hedonistic sustainability, जिसमें वो बात ये करते हैं कि यहाँ के सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हुए लाइफस्टाइल को आप इनहेंस कर सकें, नॉट कि हम कॉम्प्रोमाइज करके उसको सस्टेनेबिलिटी अचीव करें। बिल्कुल। How does we have a question from Adnan bhai. How does a relatively new firm manage to make enough to be able to pay employees every month, since the flow of projects isn't fixed / same every month? Very interesting question. Thank you. That is the bet you have to take. If you're running your own practice, that is the risk you take with it. Because फिर उसके बाद देखो प्रैक्टिस जो है वो मंथली बेसिस पे नहीं चल रही होती। यू रन इट विद अ बैकअप। तो विद एनी बिजनेस मॉडल जो भी चल रहा है उसके पास, अब ये कि सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बैकअप नहीं होता। सर्विस इंडस्ट्री में आपके 2-3 महीने का बैकअप के साथ चल रहे होते हैं। तो बस ये है, ये आपको ये तो फिर रिस्क फैक्टर आपको करना पड़ेगा ना। यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर टीम, ऑन जो उनकी जो ड्यूज हैं वो आप पे ऑब्लिगेड हैं एक तरह की, तो वो आप उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन योर ओन and you can compromise on the office expenses and the other expenses, but you cannot compromise on the employees की वो। तो उसके लिए फर्म्स के लिए यही बेहतर होता है कि वो 2-3 महीने का बैकअप लेके चलते हैं। एंड जितनी फर्म मैं जानता हूँ, क्लोजली जानता हूँ, फ्रेंड्स की हैं जब मैंने काम किया हुआ है, दे मोस्टली वर्क ऑन दैट फॉर्मूला। 2-3 महीने के बैकअप के साथ। सही। तो that's kind of like a part of your initial investment। या बिकॉज बहुत सारे देखो कोऑपरेट में हो ना, अगर आप आपको आपको खाली सैलरीज नहीं है, आपके रेंट्स भी हैं, आपके बिल्स भी हैं। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने इस मंथ में जितना रेवेन्यू जनरेट किया आपने उसी मंथ से उसके एक्सपेंसेस निकाल दिए। दैट कांट हैपन, बिकॉज आपकी पेमेंट्स भी इतनी डिफरेंट वेरी कर रही होती हैं स्टेजेस पे। तो अब वो 2 महीने तक आपकी कोई पेमेंट्स ही ड्यू नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद 3 महीने में आपकी 10, तीसरे महीने में आपकी 10 पेमेंट्स ड्यू हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप वो 2 महीने वो करोगे फिर उसके बाद 3 महीने की सारे ड्यूज निकालोगे। तो वो आपको खुद ही फिर मैनेज करना पड़ता है। दैट्स व्हाट वी लर्न व्हेन वी स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज ये हमारी चीज़ हमें स्कूल में सिखाई नहीं जाती। हमें डिज़ाइन बहुत सिखाया जाता है, लेकिन हमें ये चीज़ सिखाई नहीं जाती कि मतलब इफ़ यू वांट टू रन योर ओन प्रैक्टिस, इफ़ यू वांट टू रन अ बिजनेस, तो वो किस तरह से चलता है। तो ये आप साथ साथ सीखते हैं गलतियां कर करके भी। Obviously। अच्छा फारूक भाई, a lot of architects they often complain कि यही वाली बात है, मैं सिर्फ दूसरे एंगल से भी कर रहा हूँ कि हमें कुछ महीनों में ये नहीं पता होता कि अगले महीने हमें अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करके ऑफिस बंद करना पड़ जाए। क्या is that a thing for most small architecture firms in the country, या is that just a number of firms going through a tough time? Yeah, I think that ये ज्यादा लोगों का ये नहीं होगा। मतलब बहुत सारी फर्म्स में जानता हूँ जो इस अप्रोच के साथ नहीं चलती। दे आर हियर इन द मार्केट सिंस इयर्स एंड दे आर हियर टू स्टे। तो आप भी जानते हो यहाँ पर जो आपको कोई ऐसी है जो कोई प्रैक्टिस ही इस तरह से बहुत डिसऑर्गेनाइज चल रही है कि उनके पास कोई सिस्टम ही नहीं है कि किस तरीके से वो अपने
फाइनेंसेस मैनेज करेंगे और किस तरह से अपने सैलरीज मैनेज करेंगे, तो वहां पर किसी को जो काम करने जा रहा है उसको भी अपने साथ ये रिस्क फैक्टर कैरी करना पड़ेगा। एंड आप देखोगे कि इस तरह की फर्म में कोई भी बाय चॉइस नहीं जाएगा, अगर उसको दूसरी फर्म में नहीं मिल रहा तो शायद वो चला जाएगा, इस तरह से चला जाएगा। पर फर्स्ट प्रायोरिटी सबकी वो होगी कि जो मोर ऑर्गेनाइज्ड काइंड ऑफ फर्म्स हैं, स्टेबल। बिकॉज आपको सिर्फ आपको वो वर्क फिलोसफी नहीं देखनी होती ना, आपको साथ में कि आप ग्रेजुएट हो जाते हो तो यू हैव सर्टेन फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल, तो वो भी आपको साथ में हैज टू हैव अ बैलेंस बिटवीन। बिल्कुल लेके चलती है। ओके, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम रशना नबीर। डू यू थिंक आर्किटेक्चर इज ओनली accessible to a certain part of the society? या सैडली यस, मगर होना नहीं चाहिए ऐसी, बिकॉज आर्किटेक्चर इज स्टिल इन द मेजोरिटी ऑफ पीपल इज कंसिडर्ड अ लग्जरी, बट इट होना क्या चाहिए, इट शुड बी अ नेसेसिटी। मतलब वी वुड वांट इट लाइक दैट, बिकॉज यहाँ पर तो ये है कि सर्टन हम देखो जो प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं वो आज आके सारे डीएचएम के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। बहुत कम होता है कि कराची में, अगर मैं बोलूँ हमने कराची में किया तो बहुत गिने चुने जगह, आपको डीएचए का प्रोजेक्ट होगा, आपको केडीए का प्रोजेक्ट होगा, आपको कैंट का प्रोजेक्ट होगा, कि स्टिल कि यहाँ पर एक कंपैरेटिवली अपर मिडिल क्लास ही रह रही है, तो ये तो बात है। बट दिस शुड चेंज, आई थिंक ये होना चाहिए डिफरेंट, पर उसके लिए आर्किटेक्ट्स को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कि अब एक बंदा अगर एक सर्टेन बजट लेके चल रहा होता है घर के लिए, तो आर्किटेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिलीवर द वर्क इन द सर्टेन बजट, नॉट बिकॉज कि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि लोगों का ये परसेप्शन होता है कि अगर आर्किटेक्ट से कराएंगे तो खर्चा बहुत हो जाएगा काम में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वांट टू फुलफिल देयर डिजाइन फैंटेसीज और डिजाइन वो विजन के, हम वो करने के लिए हम, बट वो अगेन बात आ जाती है सोशली रिस्पॉन्सिबल, ये चीज भी आनी चाहिए कि यू शुड बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द क्लाइंट्स बजट, एंड अगर वो खुद से आपको बजट नहीं भी दे रहे तो आपको जब मिलते हैं आपको पता होता है कि इसकी स्पेंडिंग पावर क्या है, तो यू शुड केटर टू दैट। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप ठीक है, आप डिजाइनर हो, आप आर्टिस्ट आपके अंदर है एक, वो सब ठीक है, लेकिन बात की हकीकत को भी साथ तो सामने रखें। हाँ, सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस इंडस्ट्री शुड केटर टू द नीड ऑफ द क्लाइंट in every aspect. Of course. And if it's not doing that, तो obviously फायदा नहीं है। अच्छा, because उनको comfortable होना चाहिए, उनको comfortable होना चाहिए कि if we are hiring an architect, he'll save us money. Exactly. This perception should be the other way around. ओके, फायदा होगा बनिस्बत के उल्टा नुकसान हो जाए। रशना का एक और सवाल है कि what can architects do to change this? वो तो आपने you've partially answered that. But अगर आप एक दफा the same mindset. Yeah, though Rashna, Farooq Bhai says that the architects need to be more flexible, and they need to cater to clients regardless of what society they may be coming from. Acha ji, Adnan Bhai has another question for you. How does one approach design in a residential renovation project in early stages, especially when structural changes / additions are involved? At what point do we bring in structural consultants? अगर स्ट्रक्चर पुराना है एंड यू आर वर्किंग विद मेजर रेनोवेशंस, आप दीवारें गिरा रहे हैं उसकी, या कुछ आप मेजर उसकी मेशनरी वर्क से छेड़खानी कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली स्ट्रक्चर कंसल्टेंट की एट द बिगिनिंग ही एक जरूरत है। तो नॉट एट द लेटर स्टेज, आप एक बिगिनिंग में ही एक मीटिंग रख लें उनके साथ और आप मशवरा कर लें कि यार मेरी लिमिटेशंस क्या हैं, कि अब उसमें अब ये कि आप रेनोवेशन कर रहे हैं तो देयर विल बी सम लिमिटेशंस। एक खाली प्लॉट होता है उसमें भी एक बायलॉज की लिमिटेशन होती है, मगर फिर स्टिल काफी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। बट उसमें 2-3 किस्म की रिस्ट्रिक्शन है, एक बायलॉज की रिस्ट्रिक्शन आ गई, एक स्ट्रक्चर की लिमिटेशन आ गई, एक आपको कुछ और कंस्ट्रेंट्स आ गए, कुछ बजट के कंस्ट्रेंट्स है, कुछ है, तो आप एक शुरू में ही उसका एक एनालिसिस करके कलेक्टिव मीटिंग कर लें, तो यू चीजें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। कर सकते या सही, जबरदस्त। और एक फरूक भाई, अगर आपकी कोई एडवाइस है यंग इंटीरियर डिजाइनर्स आर्किटेक्ट्स के लिए जो अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं या हो गए हैं, तो वो प्लीज अगर आप कुछ अगर हमको एडवाइस करना चाहें। यार एडवाइस में मैं वही बात पहली वाली करूंगा कि एक तो अब वो इस प्रोफेशन में है तो जरूरी नहीं कि वो प्रैक्टिस करें, एक तो
आप एक तो वाई मैंने उस टाइम बात की थी ना, जब आप एडमिशन कर रहे हैं तो या फिर आप जी फील्ड चूज कर रहे हैं तो यू शुड नो वाई. जी एंड देन उसके बाद कभी आपको आप ऐसा ऐसा फिगर आउट करते हैं व्हाट यू वांट टू परस्यू. Because architect, a lot of my friends are not practicing. A lot of or most of them are into theoretical side of the profession. कुछ किसी और चीज में चले गए हैं, उसको किसी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी मटेरियल को आगे प्रमोट करके उसमें इनोवेशंस कर लेते हैं या फिर उसको एज अ बिजनेस परस्यू कर लेते हैं. तो देयर आर मल्टीपल वेज टू गो अबाउट इट. तो अभी आप ग्रेजुएट हुए हो तो इफ यू आर क्लियर तो यू आर लकी कि अगर आपका विजन क्लियर है कि आपको क्या करना है तो यू आर लकी. मगर अगर मेरा नहीं था जिस तरह, तो आप यू चूज अ प्लेस टू वर्क विच यू फील विच विल हेल्प यू डेवलप योर ओन विजन, आपको क्लियर करने में हेल्प करेगी वो. तो ऐसी वर्क प्लेस चूज करें और उसको फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपके सामने खुद चीजें आती जाएंगी. और फारूक भाई, थैंक यू सो मच कि आपने आज हमारे लिए टाइम निकाला. आपने इतनी सारी वैल्यूबल बातें शेयर की. रियली मीन्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू फॉर हैविंग मी. चलो, थैंक यू सो मच. थैंक यू. हाफिज.